మీడియా సోదరులకు అందరికీ కూడా ఇక్కడికి వచ్చేసిన కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలకు అందరికి పేరు పేరున నమస్కారాలు తెలుపుకుంటూ ఈరోజు నాకు ఏఐసిసి ఇన్ఛార్జ్ గారు వచ్చి నా యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం మీకు చెప్తున్నా, రాహుల్ గాంధీ గారు ప్రధానమంత్రి కావాలి. నేను ఇంకెవరి గురించో రాహుల్ గాంధీ నాది ముఖ్య ఉద్దేశం. రాహుల్ గాంధీ గారు ప్రధానమంత్రి కావాలి అంటే కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలకు ఒక్కొక్క ఎంపీ ఇంపార్టెంట్. పార్టీకి నేను చేయలేదు, మాకు జరిగినది అది వేరే విషయం. కానీ పార్టీలో నేను ఎప్పుడు కూడా పార్టీ నర్సరీకించి ఈ పార్టీలో ఉన్నాను. లోవర్ కేజీసే మేము కాంగ్రెస్ పార్టీ. మేము చార్మినార్ యూత్ కాంగ్రెస్ ప్రెసిడెంట్, చార్మినార్ యూత్ కాంగ్రెస్ జనరల్ సెక్రటరీ, సిటీ యూత్ కాంగ్రెస్ జనరల్ సెక్రటరీ, సిటీ యూత్ కాంగ్రెస్ ప్రెసిడెంట్, సిటీ కాంగ్రెస్ जनरल सेक्रेटरी, सिटी कांग्रेस प्रेसिडेंट, स्टेट यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया ओबीसी सेक्रेटरी. अभी फिलहाल मैं वर्किंग प्रेसिडेंट. 2 बार शहर हैदराबाद का अध्यक्ष था मैं. 2 साल कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष నుండి నేను అధ్యక్షుడు ఉన్నప్పుడే ఇక్కడ ప్రభుత్వం వచ్చింది 2004లో. అయితే నగర అధ్యక్షుడుగా నేను ఎంపీ అయినా. ఈ రోజు మనస్తాపం జరిగిన మాట నిజమే. నేను సీనియర్ కాటిల కష్టకాలంలో అన్ని రోజులలో మంచి చెడ్డకంతా కార్యకర్తలకు అండగుండి వాళ్ళకి మనోబలం దెబ్బతినొద్దని కరోనా ఉట్టిగా ఇంట్లో ఉంటే రాలే నాకు. ఉస్మానియా, గాంధీ, ఫీవర్, నీళ్ళ హాస్పిటల్ అన్ని ప్రజలు వేరే రాష్ట్రాలకు వచ్చిన వాళ్ళకి ట్రైన్లు ఎక్కియాలి, బయట పంపించాలి, దవాఖానాలలో మంది ఇప్పియాలి. ఆఖరికి వస్తే నాకు కరోనా వస్తే నేను వెంటిలేటర్ మీద పోయినా. డాక్టర్లు చెయ్యెత్తేసారు, కార్యకర్తలతో వచ్చి హాస్పిటల్లో ఏడుస్తున్నారు. నాకు తెలియదు బయట ఏమేమవుతుందో. ఎంతో మంది కార్యకర్తలు మొక్కు గుళ్ళు గోపురాలను మొక్కి అయిపోయిందని బ్రేకింగ్ న్యూస్ ఇచ్చేసారు. మా పిల్లలంతా బాధపడ్డారు, మా బిడ్డలందరూ ఏడుస్తున్నారు. మేము అట్లాంటి కష్టకాలంలో పార్టీకి ఉండి అది వెళ్ళి మళ్ళీ పాదయాత్రలో జిల్లాలలో తిరిగిన కరోనాలో మీ దగ్గర వచ్చిండే కరీంనగర్ వచ్చిన. అప్పుడు ఛత్తీస్గఢ్ సీఎం వచ్చిండు. ఆ రోజు మీ దగ్గర వచ్చిన నేను కరోనా వచ్చిన బతికి బయటపడ్డాక 6 రోజులకే బయటకు వెళ్ళినా. మళ్ళా ఇవన్నీ చేసుకుంటూ వచ్చి మేము సిటీలో కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఎందుకంటే ఎప్పుడు అంజన్ కుమార్ యాదవ్ మీరు అంటారు కదా ఓడిపోయారు. అంజన్ కుమార్ యాదవ్ ఎప్పుడు ఓడిపోలే. అంజన్ కుమార్ యాదవ్ను ఓడగొట్టిరు. ఇప్పుడు మంచి రోజులు ఉన్నాయి. మీరు అందరు కష్టకాలంలో నేను కాంటాక్ట్ చేస్తా. మంచి రోజులు వచ్చే వరకు ఇంకెవరు వస్తారు అనేది బాధనే ఉంటుంది కదా. ఇప్పుడు మా కొన్ని వర్గాలు మా ఎంబడి లేకుండే, ఇప్పుడు అన్ని వర్గాలు మా ఎంబడి వచ్చినాయి. ఇప్పుడు ఇస్తే నాకు వస్తుండే. కాంగ్రెస్ పార్టీ చిత్తశుద్ధి ఉంటే ఏదైనా అవుతుంది కదమ్మా. మీ మేడం గారు మాకు చెప్పారు, మీనాక్షి నటరాజన్ గారు మాకు చాలా సంతోషం. మా ఆఫీస్కి వచ్చింది అంటే మాకు ఎంతో గర్వకారణం. मैडम हमारे ऑफिस में आए, हमारा उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि वो महान नेता है. देश भर में घूम घूम के पार्टी को स्ट्रेंथन करे ऐसा नेता मेरे पास आए. राहुल जी का बिहार इलेक्शन है, वहाँ कुछ भी यहाँ कुछ भी डैमेज, केवल राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनना बोल के हमारा आखिरी ख्वाहिश है. ऊपर वाला विश्वास से मेरे जिंदा रखाऊंगा. राजू जी भर गए तो कोरोना में उड़ गया था, मेरे साथ में 15 जने गए, मेरे साथी अब 10-15 लेकर मर गए. जिंदा रह के मैं आज पार्टी के वास्ते काम कर रहा हूँ. वो उस वास्ते पार्टी का लाइन पे रहूंगा. हम जब भी तेलंगाना के वास्ते लड़े, पार्लियामेंट के अंदर तेलंगाना आए, हम लोग 5 MP विवेक साहब है, पूनम बहुत लड़े. 5 साल हमारे पूरे इसमें चले गए. MP बने तो 5 साल तेलंगाना लाने में चले गया. अब हम क्या करें बोल के. तो अभी पूरे हमारे जो डिपेंड है कार्यकर्ता लोग, पूरे मैडम से हम बात करेंगे, इंचार्ज मिनिस्टर से बात करेंगे, सबको न्याय करना, जो कार्यकर्ता है उन लोगों को न्याय करना बोल के जरूर करेंगे. महिला कांग्रेस, NSY, यूथ कांग्रेस सभी को मैडम अश्योरेंस है, सबको देखेंगे, सबको अच्छा करना बोल के. धन्यवाद. पब्लिक में एक भरोसा है, अगर एमआईएम पार्टी गरीब पब्लिक के लिए लड़ने की पार्टी है, नो डाउट, मगर यहाँ जुबली में तड़प रही इस लीडर के वजह से, उसके लिए यहाँ की पब्लिक चेंज होना बोल के बहुत देख रहे थे. पीपल वर एक्सपेक्टिंग मी फ्रॉम एमआईएम से अगर नवीन यादव आ गया तो हर रिलीजन को लेकर. आप बताइए, यहाँ के MLA जो मुकामी MLA है
उनका जुल्म क्या है यहाँ पर हल्के जुबली हिल्स में? ऐसी क्या वजह है जो आप मुसलसिल एमएलए के बारे में कहे और कह रहे कि हल्के जुबली हिल्स में दिन पे दिन खास करके नौजवान खौफ में जी रहे हैं? ऐसी क्या बात है? अब आप मीडिया में हैं, आपको नहीं मालूम क्या कितने केसेस, अनवांटेड केसेस, फॉल्स केसेस कितने लोगों पे आ रहे हैं? कई लोगों के घरा तोड़ रहे, कई लोगों के बिजनेसों पे प्रॉब्लम कर रहे। हमारे पर्सनल, हम इतना रहने के बाद इतना, हमारे को सब कुछ मालूम है। सब कुछ मानने के अलावा पावर मिसयूज करते हुए हमारे ऊपर, हमारे फैमिली मेंबर्स के ऊपर, हमारे फॉलोअर्स के ऊपर कई केसा है, 15-20 केसा कराया हमारे वालों के ऊपर। ऐसा दूसरे लोगों के ऊपर भी केसेस कर रहे। और रिसेंटली आप एक वीडियो देखे होंगे, एक पार्टी वर्कर को अटैक करा, सो वो वीडियो आया बोल के पब्लिक में मालूम हो रहा। ऐसे कई चीजें हैं। सो डेवलपमेंट के अलावा इस तरीके के जुल्मों को खत्म करना बोल के मेरा एक आशा है। नवीन यादव साहब, एक चीज बताइए, कांग्रेस पार्टी एक नेशनल पार्टी है जिसे पॉलिटिकल लाइन में समंदर बोलते हैं, हाँ। और बीआरएस पार्टी, तेलंगाना के बारे में बीआरएस पार्टी दो बार ले ली, हैट्रिक की कोशिश करी है। तो ऐसे बड़े बड़े पार्टियां भी, नवीन यादव एक मैजिक कार्ड है जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी में। क्यों आपके इस पूरे के गोल फिर रहे, चाहे वो कांग्रेस की हाईकमांड हो या फिर बीआरएस हो? क्योंकि इनडायरेक्टली भी ये लोग पूरे आपको अपनी पार्टी में दावत दे रहे हैं, फिर भी आप इंडिपेंडेंट लड़ना चाह रहे, इसकी वजह क्या हो? मैं हमारी पब्लिक को दावत देना चाह रहा हूँ, पार्टियों को नहीं, पब्लिक को दावत दे रहा हूँ। पार्टियां मेरे को दावत देने की कोशिश नहीं कर रही। मेरे को अगर है, नवीन यादव इज केपेबल लीडर, नवीन यादव यहाँ के जनता को प्रोटेक्ट करेगा, नवीन यादव यहाँ के जुबलीज को डेवलप करेगा बोल के उन लोगों को अगर भरोसा है तो लेट देम गिव मी ए चांस। उतना ही, अगर यहाँ के लीडर्स जो है सही लीडर को टिकट दिए तो हम सपोर्ट करते, जरूर सपोर्ट करते। मगर कांग्रेस पार्टी के कई बड़े बड़े लीडर्स आपसे मीटिंग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आपको एमपी से लिए लड़ने और आप कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करें, तो ये बात सही है या बेबुनियाद है? पूछ रहे मेरे को यहाँ के कांग्रेस को सपोर्ट करना बोल के पूछ रहे। आई हैव नॉट टेकन एनी डिसीजन, आई डिसाइडेड टू कंटेस्ट इंडिपेंडेंट। या कोई लीडर का नहीं, इट इज अ पब्लिक पार्टी। एनी टाइम एनीबडी कैन कम एंड गो, कोई भी आ सकते जा सकते। वो एक समुद्र है, वो फ्यूचर में सोचेंगे उसके बारे में वो क्या है। साहब का जुबली हिल्स में माइनॉरिटी के वोट्स को मिसयूज किया जा रहा, जैसे कि अब जो पब्लिक बहुत मैच्योर्ड है, बहुत मैच्योर्ड है पब्लिक। अगर लीडर्स मिसयूज करना चाह रहे तो पब्लिक एक डिसीजन पे आना बोल के, सही डिसीजन लेना बोल के मैं पब्लिक को आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। नवीन यादव साहब, एक चीज बताइए, एमआईएम पार्टी मतलब पिछले चंद दिन पहले से काफी मीडिया के सामने भी आया है और आपको ये भी हमें इत्तला मिली है कि आपको काम शुरू कर दो, फिर अचानक आपको क्यों ब्रेक मार दिया गया है? वो नहीं मालूम पार्टी के पॉलिटिक्स में क्या हुआ, वो मेरे को आइडिया नहीं है। मगर असद साहब की इज्जत करता हूँ मैं, क्योंकि हमारे फैमिली को कई लोग यूज कर लिए, कई पार्टियां जब कांग्रेस या टीडीपी सब। मगर असदुद्दीन ओवैसी साहब मेरे को एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी बाय द वे ऑफ गिविंग टिकट कॉर्पोरेटर एमएलए को दिए, और एक्सपेक्ट मैं करता हूँ, उनकी इज्जत करता हूँ। मगर आई डोंट नो क्यों इस बारे में ये डिसीजन लिए। यहाँ हर एक, इट इज नॉट, ये नहीं होता कि या केवल मुस्लिम, अब आज अजहरुद्दीन को भी माइनॉरिटी वोट बैंक है बोल के दिया गया बोल के बोल रहे बात। इधर फराजुद्दीन को भी माइनॉरिटी वोट्स ज्यादा है बोल के दिए बोल के बोल रहे। मगर यहाँ की पब्लिक एक सेक्युलर पब्लिक है, यहाँ की हर मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, एवरीबडी आर यूनाइटेड हियर एंड पीपल आर लुकिंग फॉर ए यूनाइटेड सेक्युलर लीडर। नॉट अगर Azharuddin is from a secular party, though he belongs to minority, but he is from a secular party. So ऐसा सोच है, मगर आई डोंट नो क्यों वो डिसीजन लिए। मगर हम उनकी इज्जत करते हैं। मगर मैं तो मेरा इलेक्शन लड़ूंगा। मेरा आखिरी सवाल है, आप बताइए आप कैसा महसूस करते हैं इस बार 119 कॉन्स्टिट्यूंसी में पूरे लोगों की नजर जुबली हिल्स पे है, और खास करके जुबली हिल्स की पब्लिक की नजर भी आप पर हो सकती है, मगर जितने यहाँ के उम्मीदवार है उनकी नजर भी आप पे है। तो बताइए आपको कैसा रिस्पांस मिलेगा इस बार, और बल्कि
MIM मतलब ज्यादा माइनॉरिटी से, अब इंडिपेंडेंट रहने से अब लास्ट टाइम करीब 18,000 वोट लिए थे, तो इस बार आप देख सकते हैं कि बीजेपी से जो कैंडिडेट लंकारा दीपक रेड्डी वो नॉन लोकल है, MIM से जो है शेखपेट में रहते वो, उनको यहाँ पर उतनी ज्यादा पहचान है। और रही बात कांग्रेस पार्टी के अजहरुद्दीन की, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस पार्टी का कैडर भी नाराज है और अजहरुद्दीन एक अच्छे क्रिकेटर है, अच्छे पॉलिटिशियन नहीं हो सकते, हम मानते हैं ही इज ए वेरी गुड क्रिकेटर, Yes, I बट ही इज told you. नॉट ए वेरी गुड पॉलिटिशियन। वही बोला। व्हेन ही कम ऑन इलेक्शन पीपल नीड ए वेरी गुड पॉलिटिकल लीडर, नॉट ए सर, क्योंकि ये कोई क्रिकेट का मैदान नहीं है, ये तो जनता की सेवा। तो आप बताइए, तो आपकी टक्कर किससे होगी? मैं तो हर एक से टक्कर लेने तैयार हूँ, वो अजहरुद्दीन भी रहने दो, BRS रहने दो, बीजेपी रहने दो, इंडिपेंडेंट भी रहने दो। अब मुकाबला आने वाले हर एक को भी मैं अपोजिशन ही सोचूंगा। मैंने आपका मेन टारगेट, आपका मुकाबला किससे होगा ये बताइए? मेरा मुकाबला हर किसी से है, कल दूसरे कोई इंडिपेंडेंट कोई भी जीत सकते। I'll treat everybody are as my opponents, not just BRS, not just Congress, not just BJP. Every contesting, all the candidates are opponents for me. तो आप बोले वैसा अजहरुद्दीन एक अच्छे क्रिकेटर हैं, उनकी भी इज्जत करते हैं, मगर यहाँ के तकलीफों मालूम है, वैसा लीडर होना बोल के जनता देख रही है। आप बोले वैसा 119 कॉन्स्टिट्यूंसी में जुबलील्स पे नजर है, जुबलील्स की पब्लिक आप पे नजर है, यहाँ के अपोजिशन का पूरा आपके ऊपर नजर है। यही नजर नवीन यादव के ऊपर जिताने की भी कोशिश करती बोल के फील कर रहा हूँ मैं। ठीक है, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी की पब्लिक को क्या मैसेज देना चाह रहे कल के रैली नॉमिनेशन के बाद? कल रैली है, मैं आपके बीच में बड़ा हुआ सो बच्चा हूँ, आप तो मेरे को लगभग 15 साल से देख रहे, मेरे पिताजी को 40 साल से देख रहे, हम किस तरीके के सर्विसेज दिए, हर मजहब को लेके चले सो लोग हैं हम। अगर मैं कल नॉमिनेशन डाल रहा हूँ इंडिपेंडेंट, आपका साथ चाहिए मेरे को। हर मजहब के लोग ये सोचना कि हम कैसे है, हमारा रिश्ता कैसा है पब्लिक में, आप ये नॉमिनेशन सक्सेस करने के लिए आपका आशीर्वाद सपोर्ट मेरे को चाहिए बोल के आपको रिक्वेस्ट करता हूँ। साहब, मुसलमानों का एक क्वेश्चन है माइनॉरिटीज का, जैसे कि ग्रेवयार्ड के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? ग्रेवयार्ड का बहुत बड़ा मसला है, बहुत सी तकलीफें हो रही है लोगों को, आप आने के बाद इसके ऊपर क्या करेंगे, कैसा डेवलपमेंट करेंगे? क्या मैं ये आपका कौन सा चैनल है आपका? TRN न्यूज भाई, मेरे को मैं अभी इससे पहले अभी भी बोला था, मैं यहाँ के हमारे पब्लिक को माइनॉरिटीज चाहे मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो एंड सरदारजीस हो, उन लोगों को बहुत मेजर प्रॉब्लम ग्रेवयार्ड का है। हम इसमें सरदार जी यहाँ हमारे 1000 फैमिलीज के ऊपर रहते हैं, हजारों लोग फैमिलीज है यहाँ, उनके लिए हमारे यूसुफगढ़ बस्ती वाले से बात कर उनको 2 एकड़ की जमीन में ग्रेवयार्ड बना के दिए। सो यहाँ के हर लोग को मालूम, हम उनके प्रॉब्लम सॉल्व करें और जरूर माइनॉरिटी मुस्लिम और क्रिश्चियंस के लिए भी यहाँ जमीन मिलना बहुत मुश्किल है। कल कोई भी गवर्नमेंट आने दो, हम गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट लगाएंगे, हमारे पिताजी के नाम पे ट्रस्ट है, ट्रस्ट के नाम पे रिप्रेजेंट लगाएंगे। गवर्नमेंट का रेट पे आजकल तो जमीन बहुत महंगा हो गया, किधर करोड़ों में, मगर गवर्नमेंट के रेट रीजनेबल रेट रहेगा। यहाँ से 40-50 किलोमीटर के अंदर एक 10 एकड़ की जमीन हम खरीदेंगे हमारे खुद के पैसों से, चाहे वो 2 करोड़ रहे दो 3 करोड़ रहे। ये मेरा आशा है कि हमारे यहाँ माइनॉरिटीज के लिए मैं एक जमीन खरीद के डोनेट करता हूँ बोल के 1000% आई एम गिविंग दिस एश्योरेंस।